Good morning, everyone, and welcome to Oikos. It's so good to have you. Thank you for joining us again today. We're just so excited for what God has in store for us. So, this morning we have worship led by Bridge Music and Outcast. We're about to start, so let's join our hearts in worship. God, today we're here to worship you, and we just lift up our hands and our hearts to heaven, and we just thank you for your presence, God. Come on, guys, wherever you are, I just want you to lift up your hands and just begin to worship the Lord. You know, place is never a problem. When your heart is in the right place with God, location doesn't matter, only position matters. And today we don't worship in a location, we worship from knowing who you are, knowing who we are, as we are the children of the living God. We are his bride, we are his lovers, we are the lovers of his presence. So let's just lift up our hands and let's begin to sing and let's begin to worship him. Nothing else matters. Nothing else will do, God. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. Sing it out. मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा.
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे सिर्फ तेरा नाम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। Sing it out. यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम तेरा नाम। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। God, you desire only goodness. You desire only health for us. God, we strongly believe. We know who you are. We know that you are a good father. And God, we thank you for being an amazing father to us, that you would never let anything come near us. God, thank you that we are protected under your shadow. Thank you that nothing will ever be able to touch us that is going to destroy us. God, we believe that we are protected. We are protected by your mercy, by your covering and your blood. So here we are, God, again in awe of who you are. We give it all to you, God. We worship you. We thank you for everything that you have done in our lives. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Let's pray for India. Thank you, Jesus. We bless you and thank you, Lord. We thank you for this country, India, and the government, Father God. Lord, we also pray for families and friends who are affected due to COVID-19. And Father God, I also pray right now for the people in Mizoram who are affected by the earthquake. I pray for recovery, Lord. I also pray that you keep all of us safe and let the peace and prosperity rule over India, Father God. And also I pray that you bless Israel. In Jesus' name we pray. Amen. Greetings to you all from Oikos. ओइकोस की ओर से आपको नमस्कार। Glad to see you all. बहुत खुशी हुई आप सभी को देखकर। My topic today is Journey to Your Destiny. मेरा आज का शीर्षक है आपके भाग्य की ओर यात्रा। What is destiny? क्या है आपका भाग्य? Many may say it's your fate. कई लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत है And what is going to happen to you at the end? और आपके साथ क्या होने वाला है अंत में। No matter what you do. भले आप कुछ भी करें, But I say लेकिन मैं कहता हूँ you can change your fate. कि आप आपके भविष्य को बदल सकते हैं। Now your destiny is determined by your decisions. आपका जो भाग्य है उससे आपके निश्चय पर आधारित होता है। If you have full control of your choices, यदि आपके चुनाव पर आपका नियंत्रण है, make no mistake, अगर आप कोई गलती नहीं करते हैं, you will be able to change your fate. तो आपकी किस्मत को आप बदल सकते हैं।
Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है in 1 Corinthians 9 verse 24 to 27, 1 कुरिन्थियों 9 का 24 से 27 में, don't you realize that in a race क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में everyone runs, हर कोई दौड़ता है, but only one person gets the prize. लेकिन किसी एक को ही इनाम मिलता है। So run to win. इसलिए दौड़िए ताकि आप जीत सकें। All athletes are disciplined in their training. सारे खिलाड़ी जो है अपने प्रशिक्षण में शिस्त होते हैं। They do it to win वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको जीतना होता है। the prize that will fade away. वो इनाम जो चले जाएगा, But we do it with an eternal prize. लेकिन हम ऐसे इनाम के लिए करते हैं जो अनंत काल का है। So I run with a purpose in every step. तो हम दौड़ते हैं एक उद्देश्य के साथ हर एक कदम में। I am not shadow boxing. मैं अपने परछाई के साथ नहीं लड़ता हूँ। I discipline my body मैं अपने शरीर को जो है नियंत्रण में लाता हूँ, like an athlete, जैसे एक खिलाड़ी लाता है। training to do what it should. उसे प्रशिक्षण देता हूँ ताकि वो करे जो उसे करना चाहिए। Otherwise, नहीं तो I fear मुझे डर है that preaching to others, कि मैं दूसरों को प्रचार करते हुए I myself might be disqualified. खुद नहीं वंचित रह जाऊं। Now in the world, इस संसार में we have the rat race हम देखते हैं चूहों की दौड़, and we all want to compete to be the winner. और हम सबको दौड़ना है जीतने के लिए। We want to achieve our destiny हम अपने भाग्य को हासिल करना चाहते हैं, and sometimes by hook or by crook, और कई बार किसी भी कीमत पर, even by stepping on someone else's toes. कई बार किसी और के टंगड़ी को खींचकर। Now living a disciplined life लेकिन एक शिस्त का जीवन जीने के by लिए studying hard, ज्यादा प्रशिक्षण करते हुए, by working hard, कठिन परिश्रम करते हुए we can reach the goal in our life. हम उस उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं हमारे जीवन के। The other race which Apostle Paul is speaking here, दूसरी दौड़ जो अपोस्तल पौल यहाँ कहते हैं in this scripture, इस वचन में, is not the worldly one, ये जो है संसार का नहीं है, but it's the spiritual race. ये आत्मिक दौड़ के बारे में है। Now God has great plans for us, परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छे योजना रखे हैं, and He wants us to win the race and win the prize. और वो चाहते हैं कि हम जो है दौड़ जीते और इनाम पाए। In life we face a lot of challenges, हमारे जीवनों में हम बहुत सारी चुनौतियां देखते हैं, and whether we will reach our destiny and win the race. और हम पता नहीं कि हम अपने भाग्य को पहुंच पाएंगे या जीतेंगे। So let's see what are the challenges we have in life. तो हम देखेंगे कि हमारे जीवनों में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। If we win these challenges, अगर हम इन चुनौतियों पे जय पाते हैं, we will win the race. हम जीत हासिल करेंगे। One of the first examples which I have is, सबसे पहला उदाहरण जो है मेरे पास यहाँ पे, we must not go by our impulse or feelings, हमें जो लगता है उसके हिसाब से हमको नहीं जाना चाहिए, because we will be led astray. क्योंकि हम गुमराह हो सकते हैं। For example, एक उदाहरण के तौर पे, if someone insults you face to face or backbites behind you, या कोई आप पर अगर आपका अपमान करता है, आपके पीठ के पीछे कुछ आपको कहता है, the first impulse or feeling would be anger, तो पहली भावना जो होती है आपकी वो गुस्से की होती है, which would build up in our hearts. जो आपके दिलों में बढ़ती है, Then that anger और फिर वो गुस्सा will rise बढ़ेगा, and revenge will set in your heart. और फिर आपके अंदर बदले की भावना आएगी, Anger will make you retaliate back to that person. और जो गुस्सा है वो आपको बदला लेने के लिए उत्साहेगा, You'll retaliate with justification, और आप पलटा लेंगे और उसका आप खुद कहेंगे कि इसलिए मैं कर रहा हूँ, harsh replies, और गुस्से से आप उसका जवाब देंगे and insults. और आप भी अपमान करेंगे। You will be satisfied आपको संतुष्टता मिलेगी that you took your revenge and hit them back. कि आपने बदला ले लिया, आपने पलटा लिया, Tit for tat. और जैसे को तैसा आपने कर दिया। But please note, लेकिन जानिए आप, this satisfaction of retaliation ये जो है पलटा का संतुष्टता, will not last too long. वो बहुत लंबा नहीं रहेगा आपके साथ। One day your conscience will convict you एक दिन आपका विवेक आपसे बात करेगा that it was not right for you to take revenge कि आपके लिए ये सही नहीं था कि आपने बदला लिया and react angrily. और आपने उसका जो पलटा लिया। This is the bad road. ये एक गलत रास्ता है। Now on this route, इस रूट पर if you still turn to God, अगर आप प्रभु की ओर फिरते हैं, He will lead you to repentance. वो आपको अगुवाई करेगा कि आप पश्चाताप करें। But if you don't repent, यदि आप पश्चाताप नहीं करते हैं, that anger will cause you to be depressed वो जो गुस्सा है आपको निराश कर देगा, and you will still remain in the bad road. और फिर भी आप वो गलत रास्ते पे ही रहेंगे। God wants us to always choose the higher road परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे रास्ते चुनें instead of you walking the bad road. और ना कि गलत रास्ते।
Here on the very onset, यहाँ हम देखते हैं कि when that person insulted you in the beginning, जब उस व्यक्ति ने आपका अपमान किया पहले, the Bible teaches us to immediately forgive that person. और बाइबल कहती है कि आपको तुरंत उनको क्षमा करना है, Just hold your tongue अपने जबान को काबू में रखना है, and walk away. वहां से चले जाना है, Leave that person in God's hands उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है, and you just be calm. और आप शांत रहिए। That is your test. ये आपकी परीक्षा है। It will be difficult to do it in the beginning, ये शुरुआत में मुश्किल होता है, but please understand, लेकिन जानिए आप, it is God's way to discipline and train you to become a stronger and more mature person. ये प्रभु का तरीका है आपको शिस्त में लाने के लिए और आपको प्रशिक्षण देने के लिए, ताकि आप परिपक्व बन जाएं। All because He wants you क्योंकि परमेश्वर चाहता है to go to a higher level in His kingdom. कि आप उसके राज्य में ऊंचे स्थान पर आएं। It's only by discipline and training ये केवल शिस्त और प्रशिक्षण के द्वारा आ सकता है that you can win the race, कि आप ये दौड़ जीत सकते हैं earn the prize set before you. और वो इनाम पा सकते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। Our prize will be handling higher things in God's kingdom. हमारा इनाम होगा कि हम प्रभु के राज्य में ऊंचे चीजें संभालें। My dear friends, मेरे प्यारे मित्रों, choose a higher road. ऊंचे रास्तों को चुनो। You will win the race. आप जो है दौड़ जीत जाएंगे, You will reach your destiny. आपके भाग्य को आप पहुंचेंगे। There's another example. एक और उदाहरण है, Lazy, busy. आलसी और व्यस्त। This is the time when a lot of people are lazy, busy. ये ऐसा समय है जहाँ लोग आलसी हैं और व्यस्त हैं। Just going by your impulse and feelings is risky. अपने अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं और ये भावनाओं के अनुसार जा रहे हैं, It can waste your life. और वो आपके जीवन को व्यर्थ कर सकती है, And finally, you can lose the race. और आप लड़ाई आप हार सकते हैं। Like now is the COVID-19 time. जैसे ये कोविड-19 का टाइम है, When you are at home and do not know what to do with your time. आप घर पे हैं और आप नहीं जानते कि क्या करना है आपको समय के साथ। Your impulse and feelings आपके अंदर की भावनाएं, आपके अंदर जो महसूस हो रहा है, will keep you in bed to laze around. वो आपको आपके बिस्तर पे रखेगा ताकि आप आलसी बने रहें। You will do nothing and you will not grow. आप कुछ नहीं करेंगे और आप बढ़ेंगे नहीं। So if you go by your feelings, तो यदि आप आपकी भावनाओं के साथ जाते हैं, then you will not be productive तो आप जो है फल नहीं लाएंगे and your life will be meaningless. और आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। The book of Proverbs says नीति वचन का पुस्तक कहती है that God wants us not to be like the sluggard man. कि परमेश्वर चाहता कि हम आलसी व्यक्ति नहीं बने, He doesn't want us to be like the door hinge. हम एक दरवाजे के हिंज की तरह नहीं बने, Lots of motion, बहुत सारे गतिविधियां but no results. पर कोई उसका रिजल्ट नहीं। You got to choose to be productive. आपको चुनना है कि आपको फलदायी होना है। Now God wants to make you productive in both spheres, परमेश्वर आपको फलदायी बनाना चाहता है दोनों स्तर पे, the physical and the spiritual. शारीरिक और आत्मिक। You got to choose productivity. आपको चुनना है कि आप फलदायी हो। The physical productivity जो शारीरिक फलदायीपना है, is exercising, ये है कि आप व्यायाम करें, following a good diet, आप भोजन नियंत्रण में खाएं, eating healthy foods. अच्छे भोजन खाएं, The spiritual way और आत्मिक तरीका जो है is meditating on the Bible, कि आप प्रभु के वचन पे मनन करें, spending time in prayer, प्रार्थना में समय बिताएं deciding to fast. और हम उपवास करें। Now this is self-discipline. और ये जो है ये स्वयं का शिष्ट है, Follow it, आपको इसका पीछा करना you है will win the race और आप जीत जाएंगे and you will reach the destiny. और आपके भाग्य को आप पहुंच जाएंगे। In life, there are so many examples. जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण होते हैं। We get upset and impatient at situations sometimes. हम कई बार नाराज हो जाते हैं और हम अशांत हो जाते हैं कई परिस्थितियों में। For example, you may get caught in a traffic jam एक उदाहरण कि हम अगर ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं and you may get impatient, और आप अशांत हो जाते हैं, but this is a chance for you लेकिन ये एक मौका है to take the higher road. कि आप एक ऊंचा रास्ता लें, Do not follow your emotions. आपके भावनाओं का पीछा ना करें, Get your emotions under discipline. आपका जो भावना है उसे आप शिस्त में लाएं, Don't bring your emotions on board. आपके भावनाओं को ऊपर नहीं आने दें, Be calm. शांत रहिए। You have won the race. आपने जीत ले ली है, You have reached your destiny. आप आपके भाग्य को पहुंच गए हैं। Rash impulse and emotions और जो आपके अंदर जो आपको महसूस होता है, जो आपकी भावनाएं हैं, may spoil your relationships with your family and friends. वो आपके रिश्तों को जो परिवार के साथ, आपके मित्रों के साथ है, बिगाड़ सकती है। You may be tempted in an outside relationship in your marriage, आप आपके शादी के बाहर के रिश्ते के लिए आप परीक्षा में हो सकते हैं and this will cause tears in the whole family. और ये हो सकता है कि पूरे परिवार में लोगों को आंसू बहाना पड़े। Rash
impulse and emotions तो तुरंत के जो भावनाएं और जो आपके अंदर महसूस होता है आपको, have made you lose the race, वो आपको आपके हार की ओर ले जा सकता है and you have finally failed to reach your destiny. और आपके भाग्य को आप नहीं पहुंच पाएंगे। There is a saying, एक कहावत है the pain of discipline weighs in grams, कि जो शिस्त का जो दर्द है वो ग्राम में वजन होता है, while the pain of regret weighs in tons. लेकिन जो पछतावा है उसका वजन 1000 किलो में होता है। You make a small mistake, एक छोटी सी गलती it can cause great regret to you. वो आपके लिए काफी पछतावा हो सकता है। Talking about impulse and feelings again, हम फिर से बात करेंगे हमारे अंदर जो भावनाएं हैं और जो हम महसूस करते हैं, we need wisdom हमको बुद्धि की जरूरत है and we need to follow it. और हमें उसका पीछा करना चाहिए। Someone said, किसी ने कहा, I can feel my emotions rising, मैं देख सकता हूँ कि मेरे अंदर भावनाएं उठ रही हैं, but I made a decision लेकिन मैंने निश्चय किया है not to get them on board. कि मैं उनको ऊपर नहीं आने दूँ। Being disciplined और शिस्त में रहने का अर्थ means not saying or doing what you feelings and emotions make you do. यह है कि हम वो नहीं करें जो हमको महसूस हो रहा है और जो हमारी भावनाएं कह रही हैं। Do the right thing सही चीजें कीजिए, even when you feel you do not want to do it. और जब आपको ये नहीं करने को लग रहा है तो भी Discipline the negative things जो भी नकारात्मक चीजें उससे आप शिस्त में लाइए and always keep a good attitude. और हमेशा एक अच्छी विचारधारा रखिए। We must realize हमको ये समझना है that God allows us to face big problems. कई बार परमेश्वर बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आने देता है। It is here ये यहाँ पे है that God is developing our character. कि परमेश्वर हमारे चरित्र को बना रहा है। So remember, इसलिए याद रखिए, big problems, बड़ी समस्याएं, big promotions. बड़े पदोन्नति, God knows परमेश्वर जानता है that if you aren't disciplined कि यदि आप शिस्त में नहीं हैं, to take care of that which is entrusted to you now, उन चीजों को संभालने के लिए जो परमेश्वर ने आपको अभी दिया है, like your body, जैसे आपका शरीर, your family, आपका परिवार, your job, आपकी नौकरी, your ministry, आपकी सेविकाई, then you will not be ready तो आप उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे for God to bring you कि परमेश्वर आपको more responsibilities और जिम्मेदारी दे and influences in your life. और भी आपको प्रभावशाली बनाए। Remember, याद रखिए, God wants to take you to a higher level परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाना and चाहता wants you to influence है और आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाना चाहता है। and change other people's lives too. वो दूसरे के जीवन को बदलने के लिए आपको यूज करना चाहता है। You should be willing to pay the price for victory. आपको आपके कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए आपकी जीत के लिए। There is no easy way. ये कोई आसान तरीका नहीं है। Self-discipline should be an important part in your life. आपके जीवन के शिस्त जो है वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। All sportsmen जो भी खिलाड़ी होते हैं need training to be self-disciplined उनको प्रशिक्षण में जाना होता है खुद को शिस्त में लाने के लिए, if they want to win the race. यदि उनको दौड़ जीतनी है तो। Hebrews 12 verse 11 says, इब्रानियों की 12 का 11 कहता है, all discipline for the moment जो शिस्त है इस समय के लिए seems not to be joyful, वो जो है हमें आनंददायक नहीं लगता है, but sorrowful. लेकिन दुखदायक। Yet to those who have been trained, लेकिन जो इससे प्रशिक्षित होते हैं afterwards it yields the peaceful fruits of righteousness. बाद में उनके लिए ये शांतिपूर्ण फलदायी फल लेके आता है। We come across disciplines in various parts of our life. हम अपने जीवन के कई भागों में शिस्त का सामना करते हैं। When we are young, जब हम जवान होते हैं, our parents discipline us. हमारे माता पिता हमें शिस्त देते हैं। They want us to be great adults. वो चाहते हैं कि हम अच्छे पुरुष बने। Proverbs 22 verse 6 says, नीति वचन का 22 का 6 कहता है, train up a child एक बच्चे को आप प्रशिक्षण दीजिए and he will grow in the ways of the Lord. और वो जो है प्रभु के मार्ग में जो है बढ़ेगा। The other kind of discipline is God's discipline. और दूसरा जो प्रशिक्षण है वो है परमेश्वर का शिस्त। He wants us to grow up in his statutes. वो चाहता है कि हम उसके विधियों में बढ़ें। Hebrews 12 verse 5 says, इब्रानियों का 12 का 5 कहता है, my son, do not neglect the discipline of the Lord. मेरे बेटे परमेश्वर के जो ताड़ना को तू हल्का न जान। Now these two are external disciplines, ये जो है ये बाहरी शिस्त हैं, but we have the self-discipline to follow. लेकिन हमें खुद जो है शिस्त में आना चाहिए। We have to personally discipline ourselves, हमें खुद को अपने आप को शिस्त में लाना है। control and do the right things. हमें नियंत्रण में अपने आप को सही चीजें करने के लिए करना है। So how can we do that? हम कैसे ये कर सकते हैं? We will explain later. हम बाद में इसे देखेंगे।
Now, what are the benefits of self-discipline? तो हम देखते हैं कि स्वयं से शिस्त में लाना उसका फायदा क्या है। Number one, पहली बात, self-discipline keeps us healthy. खुद को शिस्त में लाना जो है अपने आप को हमको स्वास्थ्य में रखता है, Because the Bible says in 1 Corinthians 9 verse 27, क्योंकि बाइबल की पहली कुरिन्थी 9:27 में ऐसा लिखा है, I discipline my body like an athlete, मैं अपने शरीर को जो है शिस्त में लाता हूँ जैसे एक खिलाड़ी लाता है, training to be what it should. उस चीज को करने के लिए जिसके लिए वो करना चाहिए। Otherwise, I fear that after preaching to others, नहीं तो मुझे डर लगता है कि जैसे मैंने अगर दूसरे को प्रचार किया है, I myself might be disciplined. मैं खुद वंचित न रह जाऊं। Taking care of our own bodies is very important. अपने शरीर का ख्याल रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। If we are sick and exhausted, यदि हम बीमार हैं और हम थके हुए हैं, how can we work for the kingdom of God? हम कैसे प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं? We got to be active, हमको जो है हमको कार्यरत होना है, eat healthy foods, हमको अच्छे भोजन खाने हैं and exercise. और व्यायाम करने हैं। We are giving our bodies the fuel. हम अपने शरीर को ईंधन दे रहे हैं We need to carry out God's plan और हमें प्रभु की योजनाओं को लेकर चलना है through our lives. पूरे जीवन भर। Self-discipline, स्वयं को नियंत्रण में लाना, in point 2, दूसरी बात में increases our focus and productivity. वो हमारे जो है ध्यान को और हमारे फलदायीपना को बढ़ाता है। Proverbs 13 verse 4 says, नीति वचन का 13:4 कहता है, lazy people want much but get little, एक आलसी व्यक्ति को बहुत कुछ चाहिए होता है पर बहुत कम मिलता है, but those who work hard will prosper. लेकिन जो लोग अच्छा परिश्रम करते हैं वो लोग जो है वो कामयाबी पाते हैं। God wants us to be producing परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उत्पन्न करें and to be productive, और हम लोग फलदायी बने, to have a clear focus in life. कि हमारे जीवन में एक स्पष्ट ध्यान हो। Self-discipline helps us when we are in the valley. खुद को शिस्त में लाना इसमें सहायता करता है जब हम खाई की स्थिति में होते हैं, When we walk through hard times, जब हम बुरे स्थितियों में जाते हैं। our self-disciplined life helps us a lot. हमारा खुद का शिस्त का जीवन जो है हमको जीवन में सहायता करता है, Because you discipline to study the word क्योंकि आपने अपने आप को शिस्त में लाया कि आप प्रभु के वचन का अध्ययन which करें, instructs you जो आपको सिखाता है how to handle all your problems कैसे आपके समस्याओं को आपने संभालना है, and to face life. कैसे जीवन का सामना करना है। It causes you to make better choices वो आपको सहायता करता है कि आप सही चुनाव करें, and walk in the right path God has for you. कि आप सही रास्ते में चले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Because when we take time to listen to His voice, क्योंकि जब हम समय लेते हैं कि उसकी आवाज को हम सुने, we will experience His peace even in the storm. कि हम उसकी शांति को महसूस करेंगे एक तूफान के समय में भी। The last point 4, और जो आखिरी बात है, चौथा बात, self-discipline makes us holy. कि खुद को शिस्त में लाना हमको पवित्र बनाता है। 1 Peter 1:15, पहला पत्रस का 1:15 कहता है, God demands us to be holy. परमेश्वर कहता है हमसे कि हमको पवित्र होना है। This is achieved by living in obedience to God ये हमको हासिल तब होगा जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे and living a disciplined life. और ऐसा जीवन जो नियंत्रण में है। 1 Timothy 4 verse 7 to 8 says, 1 तिमुथी 4:7-8 कहता है have nothing to do with godless myths कि जो गलील बातें उससे दूर रहना है and old wives' tales. और जो महिलाओं की पुरानी कहानियां, Rather train or discipline yourself to be godly. अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए और अपने आप को शिस्त में लाइए ताकि आप एक पवित्र जीवन बिताएं। For physical training is of some value, एक शरीर की जो प्रशिक्षण है वो एक थोड़े मूल्य की होती है, but godly training लेकिन परमेश्वर में जो आप शिक्षा लेते हैं has value for all things, वो हर एक बातों के लिए मूल्य है। holding promise ऐसा वादा है for both the present life जो आज के जीवन के लिए है and the life beyond. और वो जीवन जो आने वाला है। Now let me tell you, और इसलिए मैं आपको कहता हूँ, there are 3 enemies 3 शत्रु हैं which self-discipline has. जो स्वयं को शिस्त लाने के विरुद्ध आते हैं। Satan, शैतान, our flesh, हमारा शरीर and the worldly system. और संसार के जो नियम। I'd like to even give you precautions मैं आपको सावधान करना चाहूंगा to be followed to live a self-disciplined life. कि आप ऐसा जीवन जिए जो आप शिस्त में रह रहे हैं। Be diligent in what you do. आप जो भी कर रहे हैं आप ध्यानपूर्वक कीजिए। Be on time to work. आप काम पे आप समय पे पहुंचिए। Work with honesty and integrity. पूरे ईमानदारी से आप कार्य कीजिए। Point 2. दूसरी बात, Watch your character. आपके चरित्र की ओर ध्यान दीजिए। Be away from bad habits and addictions. जो भी बुरी आदतें हैं और बुरे नशाओं से आप दूर रहिए। There is a saying, एक कहावत है, your talent can take you to great heights, आपकी काबिलियत आपको ऊंचे स्थान पे लेके जा सकती है, but only your character can keep you there. लेकिन आपका चरित्र ही है जो आपको वहां रख सकता है। Point 3. तीसरी बात, Watch your impulse and emotions. ध्यान रखिए कि आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है, आपकी भावनाएं क्या है। Be forgiving, क्षमा कीजिए, calm, शांत रहिए non-retaliating,
और पलटा न लीजिए, Peacemaking, शांति बनाने वाले बनिए, as mentioned before. जैसे पहले मैंने कहा। Point 4. चौथी बात, Watch your finances. आपके खर्चों पर ध्यान दीजिए, Do not overspend. ज्यादा मत खर्च कीजिए। Are you giving your 10% tithes to the Lord? क्या आप प्रभु को दसवांश दे रहे हैं? Are you generous in helping the poor and needy? क्या जो गरीब है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आप सहायता कर रहे हैं? Finally, आखिर में, how to become a self-disciplined person, कैसे आप बने एक खुद को शिस्त में रखने वाले व्यक्ति, especially a spiritually self-disciplined person. विशेषकर आत्मिक तौर पे खुद को नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति। There are just 3 points. तीन ही बातें हैं। First, पहली बात, by having a fixed prayer time daily. कि आपका रोज एक फिक्स समय हो प्रार्थना करने के लिए। This will help us fight the enemies against self-discipline. ये आपको सहायता करेगा कि आप शत्रु को भगाएं और आपके जीवन को आप शिस्त में रखें। A time in prayer will help you listen to God. और प्रार्थना का समय जो है आपको सहायता करेगा कि आप प्रभु के वाणी को सुन सकें। His still soft voice उसका जो शांत भरा जो आवाज है, will reveal His plans for your life. वो आपके जीवन में उसकी योजनाओं को प्रकट करेगा। He will place impressions in your heart. वो आपके दिलों में उसके बातों को डालेगा। The second point, दूसरी बात, God also speaks to us through the Bible. परमेश्वर हमसे बातें करता है बाइबल से। When we read and meditate on it जब उसके वचन को पढ़ते हैं, उस पे मनन करते हैं day and night, दिन और रात, He will make us prosperous. वो हमको जो है प्रसिद्ध बनाएगा, As written in Joshua 1:9. जैसे यहोशू के पहले 9 में लिखा हुआ है। And the third and the final point, और तीसरी आखिरी बात, by hearing and submitting to the elders कि हम of our church, कि हम सुने और आज्ञा माने जो हमारे कलीसिया के वयस्क लोग हैं उनका। to listen to the advice of spiritual mentors, तो जो भी हमारे आत्मिक हमको अगुवाई करते हैं उनकी हम सुने, and also our parents. और हमारे माता पिताओं का। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Hebrews 12:11 says, इब्रानियों का 12 का 11 कहता है, all discipline जो भी शिस्त के कार्य हैं for the moment seems not to be joyful, उस समय जो है वो हमको आनंद नहीं लाते हैं, but sorrowful. लेकिन दुख लाते हैं। Yet to those who have been trained, लेकिन जो इससे प्रशिक्षण पाते हैं, afterwards will yield बाद में जो है वो the peaceful fruit of वो righteousness. शांति भरा जो धार्मिकता का इनाम में पाएंगे। Today I encourage you आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ to make a commitment कि आप अपने आप को समर्पित कीजिए that every day I will set a fixed time कि रोज मैं एक निश्चित समय पे प्रार्थना करूंगा, and a fixed duration एक निश्चित समय के लिए towards praise and worship, आराधना के लिए, studying and meditating the word, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, dedicated enough time to prayer. और मैं काफी समय दूंगा प्रार्थना के लिए। This spiritual discipline ये जो है आत्मिक शिस्त will help you to raise your character, आपको सहायता करेगा आपके चरित्र को बढ़ाने के लिए, and you will journey to your destiny smoothly. और आपके भाग्य की ओर आप आसानी से चलेंगे। Then you can say, और आप फिर कह सकेंगे like in 2 Timothy 4:7, जैसे 2 तिमुथी का 4 के 7 में लिखा है, I have fought the fight, मैंने जो लड़ाई लड़ी है, I have finished the race, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है, I have remained faithful. और मैं विश्वास योग्य रहा हूँ। Do you want to run the race and win it? क्या आप दौड़ के जीतना चाहते हैं? If you like to live a winning life, सो आप यदि जीत से भरा जीवन जीना चाहते हैं, I earnestly request you to मैं आपसे विनती करता हूँ follow me in this prayer कि मेरे साथ आप ये प्रार्थना कीजिए and receive Jesus as your Lord. और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार कीजिए। Say, Dear Lord Jesus, कहिए, प्यारे प्रभु यीशु, sorry for all my sins. क्षमा कीजिए मेरे सारे पापों को। Thank you for dying on the cross. धन्यवाद कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। Please be a part of my life. मेरे जीवन का हिस्सा बन जाइए। And now for the final benediction. आइए हम अंत की प्रार्थना करेंगे। Lord, protect and guide us प्रभु हमारी रक्षा कीजिए और हमारा अगुवाई कीजिए throughout this week. पूरे सप्ताह भर। May the grace of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह the love of God the Father, और पिता का प्रेम and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। Amen. आमीन।